and disease, because we'll be talking about human health. Okay. जैसे मैंने कल बताया था, the chapter is divided into two parts. One is health. How do we maintain our health? How our immune system works. Okay, that is one part of the chapter. Second is entire disease. टाइफॉइड है, मलेरिया है, फिलेरिया है, ऐसे एक लेंथ में डिजीज है. देन यू हैव टू बिग डिजीजेस, कैंसर एंड एड्स, व्हिच वी हैव टू गो इन डिटेल. देन वी हैव adolescence, that is growing up, and then we have addiction. So it moves like this, and that's why, because the chapter has three parts, it is a little bit lengthy one. Fine, लेकिन आप उसको three parts में health, then study the disease. You can break it up like this, and then you will study about the mental development, adolescence and addiction. ठीक है? If you remember, कल हमने health का definition किया था, WHO का definition, World Health Organization 1948 का definition किया था, correct? What was that? Social, physical और mental. ये तीन words उसमें included. कि हमारा mentally भी हम ठीक होने चाहिए. ठीक मतलब क्लास किसी का ऑडियो है, प्लीज और दीजिए. तो मेंटली ठीक होने का मतलब क्या है? दैट doesn't mean we are intelligent necessarily. It means we are fine with the environment, we understand, we listen, we know what is happening. Okay, we are alert, we are aware. It's not that we are not conscious about things. Physical, आपकी health, height, weight, injury नहीं, suppose मेरा हाथ fracture हो जाए, तो then we will call it as I'm physically fit, is it? So physically also we should be fit, and then comes which well-being, physical, mental and social. दूसरों के साथ हमारा relationship, how we are in the society. But then when we saw the later slide, you saw there were so many dimensions of health, correct? There was emotional, spiritual, financial, occupational. तो इतना wide हो गया environment कि health affected by so many things. Just because ठीक से मेरे पास job नहीं, occupation नहीं, I become unhealthy. Are you getting it? I may not get food. So health is affected by many factors. Okay. So we move ahead with that. I'm sharing the slides. Just give me 2 minutes. Okay, class, coming back to you. पहले मेरी डाउन बाद में कर लो. Okay, class. तो ये हमारा chapter था human health and disease, and we are just at the beginning of the chapter. We did what health. Just now also explained you again. This is what we went in a bit detail, that खाली physical, social and mental पे health रुक नहीं सकती. It is affected by many other dimensions. Correct? So let's look at it. If you want good health, which we said is our birthright, then we need hygienic balanced diet. हमें food चाहिए, वो भी balanced, मतलब carbohydrate, protein, fat, सब कुछ, plus hygienic. It should not be from a place जहाँ से कुछ infection आ जाए. It should not be made by person who has some disease, जिसको infection हो गया. Correct? So hygienic balanced diet. We want clean drinking water. करेक्ट? गवर्नमेंट आप सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है. आपको पर्सनली जाके लेक पॉन्ड से पानी लेके उसको क्लीन नहीं करना. करेक्ट? सो दैट इज देन वी नीड पर्सनल हाइजीन, मतलब वी शुड बी पर्सनली क्लीन, एंड कम्युनिटी हाइजीन. हमारी जो कम्युनिटी है, सपोज क्लास यू टेक बाथ एवरी डे and you come out of your house, but there's a group of people who don't take bath every day. They are not hygienic. So you may catch a disease from them. So personal plus community, दोनों clean चाहिए. It is ऐसा नहीं कि मैं मेरे घर से सब कचरा साफ करके बाहर फेंक दूं और मुझे बाहर से क्या करना. No, it is going to affect us. We know it affects us. Correct? Regular physical exercise. We should have lots of physical movement. एक जगह बैठे किसी का ऑडियो है, ठीक है? रेगुलर आप एक्सरसाइज मतलब
See, even if you're walking, that is an exercise. If you actually do exercise, very good. But suppose आप काफी walk करते हो, that itself is an exercise. Basic point is physical fitness के लिए physical movement बहुत जरूरी. You cannot be just sitting and becoming. Okay, so that is also needed. Knowledge about their disease. That's why the chapter is there. We should know. ये करेंगे तो ये होगा, ये खाएंगे तो ये होगा, ये नहीं खाएंगे तो क्या होगा, विटामिन क्यों खाना है, मिनरल क्यों खाना है, पानी क्यों पीना है, और मच्छर काटेगा तो क्या होगा. वी आर हैविंग नॉलेज. इफ वी डोंट हैव, then we may have more chances of getting infected, and we should know किस disease में क्या होता है. Suppose somebody says diabetes, then I should know कि body का कौन से part में तकलीफ होगी. Suppose somebody says that it is hepatitis, I should know liver is in trouble. तो हम उसको फिर उस तरीके से ट्रीट करेंगे, उस तरीके का फूड देंगे. करेक्ट. सो नॉलेज एंड इफेक्ट, वी शुड नो ऑफ द डिजीज. प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट. मैंने कहा गवर्नमेंट आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, बट ड्रेनेज और सीवेज फैसिलिटी भी बनाई है ना. सो वेस्ट सब कुछ डिस्पोज होके प्रॉपरली शुड गो टू द फाइनल destination where it will be disposed of completely. वो गवर्नमेंट का काम है. करेक्ट. हम उसको गवर्नमेंट उसको बर्न करती है कि बरी करती है कि सी वाटर में डालती है. उनका एक प्रॉपर सिस्टम. करेक्ट. सो व्हाट इज दैट? वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, वही पानी से व्हाट विल कम अप, मॉस्किटोज, इंसेक्ट, लार्वा, वॉर्म्स, बहुत सारी चीजें आएंगी एंड दे विल स्प्रेड ऑल. सो वी हैव टू डू दिस आल्सो. सो दिस इज योर टेक्सचुअल explanation about the disease. And you can see again determinants of health. They've already discussed this. Social support chahiye, employment, good working condition, physical environment should be also good. Correct. We also need proper education, healthy child development. छोटे बच्चों का छोटे से ही हेल्थ अच्छे होने चाहिए. अदरवाइज छोटे में वो वीक हो गए, दे गेट सम डिजीज, तो बड़े होके वो रिकवर होगा कि नहीं, वी डोंट नो. गुड जेनेटिक, अगर हमारी जनरेशन हेल्दी होगी तो नेक्स्ट जनरेशन भी हेल्दी. करेक्ट. वी हैव टू कीप दिस हेल्थ गोइंग ऑन. हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बीमार है और वो फाइनेंशियली वीक है इसलिए उसको डॉक्टर की हेल्प नहीं मिली. करेक्ट. हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स है, नो डाउट. हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है and we need more doctors and more hospitals, but still whatever is there, something is being provided. Nowadays village के भी नजदीक में बहुत सारी dispensaries है, mobile vans में dispensaries है, so that we can reach people. So it should be there. It is our right to get health services. Correct. Personal health practices you should know कि कैसे clean रहना है, कैसे काम करना है, how to keep yourself clean. Income and social status, our income should be enough to give us good food, quality food, and socially we should not have any stress कि अभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना. स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं होनी. एंड सोशल सपोर्ट नेटवर्क. अगर स्ट्रेस है तो फिर मेरे पेरेंट, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स, all will support me. There should be a network, there should be a system to help a person. So this all determines our health. ये slide और ये वाली almost similar चीजें बता रही. करेक्ट. आपके बुक में क्लास ये ऐसे एक एक वर्ड लिखा है, तो you should know what it is, what we are talking about. Okay. Now ये हमारा हेल्थ का टॉपिक स्टार्ट हुआ. So you can see this human being is trying to stop the harmful viruses coming towards it. So who will be stopping it, class? Our immune system. जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी, करेक्ट, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी. तो वैसे ही इम्यून सिस्टम के लिए कोई ऑर्गन है क्लास? एक टिपिकल ऑर्गन बोल सकती हूँ मैं? नहीं. बहुत सारे अलग अलग सेल्स, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. यू कैन नॉट से दिस इज फॉर इम्यून सिस्टम ओनली, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं. ओके. सो वी हैव अ इम्यून सिस्टम which help us to fight with disease, which help us
recover and which help us to live a healthy life. मतलब हमारा एक डिफेंस सिस्टम जरूर है. ओके, आजकल इम्यूनिटी पे आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, बहुत सारी मेडिसिन मिल रही, इम्यूनिटी बूस्टर, करेक्ट. आप विटामिन सी, जिंक सुन रहे हो ना, आजकल ये सब बहुत है न्यूज में. आपको फ्री भी बहुत सारी मेडिसिन बांटी जा रही है अगर आप पढ़ते हो. आर्सेनिक एल्बम है. आई होप यू आर रीडिंग ऑल दिस. आई होप यू आर टेकिंग ऑल्सो. ओके, so we are supposed to be taking our immunity to a higher level at this junction. So let's see, हम करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज पर रहे. अगर इससे हमारा इम्यून सिस्टम बेटर रहेगा, you will know more about disease, you will fight with it better. The system which protects us, class ये textual line है सब, okay, which protects us from various infectious agents जो हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं, that is called as immune system. ठीक है, immune system. कंट्री का डिफेंस सिस्टम है क्लास, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, है ना, बराबर है. वी हैव बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आल्सो, करेक्ट. So these help in defense. Your body has an immune system. Any enemy, any infectious agent coming, the body will not just sit and wait कि मेडिसिन खा के ठीक होंगे. नहीं, सबसे पहले मुझे बीमार ही नहीं होना. I don't want to fall sick. So my immune system will fight. When there is a failure there, तब आप बीमार, otherwise नहीं. So resistance is the ability to prevent the damage or disease by our defense system. हमारा डिफेंस सिस्टम क्या करता है? फाइट करता है, रेजिस्ट करता है, रुकाता है डिजीज कि नहीं आप नहीं आ सकते. अगर आप आ गए हो तो यू हैव टू डाई, द बॉडी इज नॉट गोइंग टू सफर. ठीक है. सो इन स्पाइट ऑफ गेटिंग सो मेनी बैक्टीरिया, अगर आप सिर्फ अपना मुंह खोलो 1 मिनट के लिए तो हजारों बैक्टीरिया अंदर चले गए. ओके, एयर में हजारों बैक्टीरिया, करेक्ट. आपके हाथ के ऊपर, आप जहां भी बैठे हो घर पे, करेक्ट, आप चेयर को टच कर रहे हो, टेबल को टच कर रहे हो, कितनी चीजों को टच कर, हजारों बैक्टीरिया आपके हाथ में. ठीक है. सो इन स्पाइट ऑफ कांस्टेंट एक्सपोजर, क्या हम रोज बीमार पड़ते हैं? नो, मोस्ट ऑफ अस रिमेन हेल्दी, है ना. हम सब रोज पढ़ रहे हैं, रोज लेक्चर हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम एकदम एक्टिवली फाइट कर रहा है. ओके, आपका इम्यून सिस्टम खड़ा है आपके साथ. तो जैसे ही कोई पैथोजन आता है, इम्यून सिस्टम उसको किल कर देता है, मार देता है, फाइट करता है. ठीक है. मोस्ट ऑफ अस कभी कभी हम फेल हो जाते हैं और फिर हम छोटी मोटी डिजीज कुछ हो जाता है, फिर आपको हेल्दी होने में टाइम लगता है, एंड वी गेट. ठीक है. सो लेट्स सी, somebody is asking, ये डेड बैक्टीरिया बॉडी के बाहर कैसे? डेड चीज बॉडी में गई, बॉडी में सेल्स है. इफ यू नो द टर्म फैगोसाइटोसिस, फैगो याद है, ईटिंग, सॉलोइंग. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स ऐसे जो डेड, ब्रोकन, यूजलेस, हार्मफुल पार्टिकल्स को क्या करते हैं? सॉलो, खा जाते हैं. तो ये डेड बैक्टीरिया बॉडी में गया, बॉडी के फैगोसाइटिक सेल्स ने उसको किल कर, कंज्यूम कर लिया, ब्रेक डाउन कर दिया. गेटिंग इट? ओके. द टर्म इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का एक्चुअल मीनिंग लास्ट लाइन में देखिए, फ्रीडम, एग्जेम्प्ट. सो इट इज फ्रीडम फ्रॉम पैथोजन, freedom from anything toxic, freedom from any injury which a pathogen can cause. It is resistant, which keeps you free from disease. If your immune system is good, you are exempted by the disease. If not, then you are in trouble and the disease can attack you and we can suffer. Still we can come back. It's not that disease will kill us. We can still come back. But class, हमारा इस चैप्टर में कम से कम 10 बार एक लाइन आने वाली. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, करेक्ट. ये हम सेकेंड स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, करेक्ट. इस चैप्टर में टेक्स्ट बुक में 10 बार लिखा हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बीमार होके ठीक नहीं हो रहा है, बीमार ही नहीं होना है. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट मूव्स अहेड. ओके, नाउ दिस इज
little easier one definition, non-textual, but still I've put it there. Okay, immunology. The study of immune system is called immunology. Logy मतलब study, ये किसकी study हो रही है? Immune system. Immune system, the cellular molecular components. मैंने कहा एक particular organ नहीं बोल सकते कि ये gland है, ऐसा नहीं होता. Immune system में बहुत सारे cells है. So cellular molecular, can I use the word antibody? है ना? तो antibody is a chemical, a molecular component which will help to fight, and so it is a part of immune system. Okay, immunity, the projection from infectious disease, means when you come out from the disease. Okay, the function of immune system is defense against microbe. ठीक है, but even non-infectious substances, non-infectious मतलब क्लास ये लाइन देखिए, नॉन इन्फेक्शियस के लिए भी इम्यून सिस्टम फाइट करता है. इम्यून सिस्टम इज नॉट वेटिंग. आपके बॉडी में कोई चीज गई तो बॉडी वेट नहीं करेगी ये मुझे मारेगा तो मैं इसको मारूंगा, नहीं, ये मारे या ना मारे इसको मैं पहचानता नहीं, थ्रो इट आउट, डोंट टेक रिस्क. तो इम्यून सिस्टम बहुत डिफेंसिव होता है, यू कैन नॉट टेक दैट. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्सेस, whatever response you get from immune system. क्लास आपको छींक आती है, आप स्नीज करते हो, करेक्ट, यू स्नीज, दैट स्नीजिंग इज अ फॉर्म ऑफ इम्यून सिस्टम का डिफेंस कि यहाँ पे कुछ कचरा अटक गया, थ्रो इट आउट. कॉफिंग, इम्यून सिस्टम कुछ कर रहा है ना, रेस्पिरेटरी को बोल रहा है कॉफ करो, ठीक है, तो व्हाट इज इट? सो ऑल दिस कम्स अंडर रिस्पॉन्सेस. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो लेट्स वर्क विद इम्यून सिस्टम. बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट की दो लाइन. इम्यून सिस्टम मेन रोल इज टू फाइंड आउट ये सेल मेरा है क्या, सेल्फ, और ये दूसरा कौन है, नॉन सेल्फ. इट शुड आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ठीक है, ये सोल्जर इंडिया का है और ये सोल्जर चाइना का है, तो हमको इंडिया वाले को नहीं मारना है. बॉडी में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, करेक्ट, सेल्स है, तो गलती से अपने सेल को नहीं किल करना है. तो फर्स्ट आइडेंटिफाई हु इज नॉन सेल्फ, उसको मारना है, एंड हु इज सेल्फ, उसको प्रोटेक्ट. ठीक है, फिर उसमें से नॉन सेल्फ को एलिमिनेट कर दो, निकाल दो, किल कर दो. तो दिस इज द होल सोल प्रिंसिपल ऑन विच इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू फाइट. अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि ये फॉरेनर है तो फिर बॉडी इज इन ट्रबल. फिर फॉरेनर आएगा, हमको डिस्टर्ब करेगा, किल करेगा, व्हाटएवर इज पॉसिबल, क्योंकि इम्यून सिस्टम ने आइडेंटिफाई नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लास? यू नो अबाउट द डिजीज एड्स, HIV, सुना है HIV, करेक्ट, बाद में डिटेल में. जब HIV वायरस एंटर्स अवर बॉडी, जब वो बॉडी के अंदर आता है, वो इतना आई विल से कनिंग, बहुत ही कनिंग इंटेलिजेंट टाइप का वायरस है. वो आता है तो वो बिहेव कैसे करता है, सेल्फ की तरह, जैसे कि वो हमारे बॉडी का ही एक सेल है, और बॉडी इम्यून सिस्टम फंस जाता है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसीलिए वो उससे इमीडिएटली फाइट शुरू नहीं करता, एंड दैट्स व्हाई पर्सन सफर्स बैडली. AIDS kills us, correct? So imagine हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो गया और पर्सन की डेथ हो गई ना. Are you understanding? Just because we could not identify the non-self. You can imagine एक छोटा सा प्रॉब्लम, वायरस कितना छोटा है वो, but that happens with the body. ठीक है? Yes class, we are moving ahead from here to the next part. Concept of immunity. Who is the father of immunity? Edward Jenner. He started this immunity concept. He explained it. He put it forward. Where? In England. He's from England. He was the first one to develop a vaccine for cowpox. Smallpox पता है, चिकन पॉक्स पता है, cowpox क्या है? cowpox जब आप केटल्स वगैरह से डील करते हैं, उनको भी डिजीज होती है हमारी तरह, जैसे चिकन पॉक्स होता है, काउ पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स.
आजकल स्मॉल पॉक्स होता नहीं क्लास, हमने उसको टोटली रिमूव कर दिया है। तो ही फाउंड, सुना होगा एडवर्ड जेनर के बारे में, कि दोज पीपल, दोज हु यूज्ड टू विजिट द काउ टू टेक द मिल्क, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, उसने देखा कि स्मॉल पॉक्स स्प्रेड हो रहा है, लेकिन जो लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था उसने देखा क्यों नहीं हो रहा है इनको, तो देखा ओके दे विजिट काउ एंड दे गेट मिल्क, तो उसने काउ की तरफ देखा, काउ को हो रखा है काउ पॉक्स, नो बिकॉज दे विजिट द काउ एंड टेक मिल्क, वो थोड़ा सा वायरस उनके बॉडी में जाके उनके बॉडी ने इम्यूनिटी जनरेट कर ली, काउ पॉक्स वायरस से स्मॉल पॉक्स वायरस से फाइट करना सीख लिया। आर यू गेटिंग इट? सो ही रियलाइज, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा वैक्सीन का कंसेप्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको पोलियो वैक्सीन मिला है? यस मिला है, ओके बहुत छोटे में मिले जाने। अभी अभी लास्ट ईयर MMR वैक्सीन दी थी गवर्नमेंट ने, मीजल्स एंड रुबेला कंपलसरी सबको दी गई स्कूल लेवल तक, कंपलसरी दी, करेक्ट? तो क्या था उसमें, हम वैक्सीन क्या करते हैं, छोटा सा एक वायरस बॉडी में डालते हैं एक स्पेशलाइज्ड वे में, एंड बॉडी लर्न्स टू फाइट। सो दिस कंसेप्ट वाज फर्स्ट टाइम पुट फॉरवर्ड बाय एडवर्ड जेनर कि यस वी कैन लर्न, इम्यून सिस्टम कैन बी टॉट, कैन बी एक्सप्लेन, कैन बी गिवन अ एक्सपीरियंस टू फाइट and it can learn. ठीक है? So immunology, the science which deals with study of immune system, immune responses हम foreign substance को देते हैं, अगर हमने उसको identify किया, we can protect ourselves from infectious disease because of immune response. Okay? And it is class, क्योंकि मेरी body respond कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब अपनी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है, किसी की जल्दी करती है, किसी की लेट। कुछ लोग हम सबका डिफरेंट वे रिएक्ट करते, करेक्ट? सारे लोगों को डॉक्टर सेम दवाई देता है क्या? मैं सेम डिजीज बोल, चलो मुझे भी सर्दी, आपको भी सर्दी, और एक किसी को सर्दी, अब डॉक्टर के पास पहुंच, सेम दवा देगा नहीं, वो एज देखेगा, वो मेल फीमेल देखेगा, वो देखेगा आप कितनी लेवल कितने पे है आपका, एकदम बंद है, सांस भी फूल रही है क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड देन ही गिव्स different medicine because our body fights in a different way. The medicine which can be given to a 20-year-old cannot be given to a 2-year-old, cannot be given to a 80-year-old. There's a difference क्योंकि तीनों का immune system differently respond. You getting it? ऐसा भी होता है ना कि मैं क्यों बीमार पड़ गई, दूसरे क्यों नहीं बीमार पड़े, इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी जैसे रिएक्ट करेगी। आर यू गेटिंग इट? यस मिस, हम लोग तो ह्यूमन है, तो हम लोग को चिकन पॉक्स क्यों होता है? चिकन पॉक्स सिर्फ नाम है क्लास उसका, ओके? इट इज अ ह्यूमन वायरस, यू नो ना, वायरसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, और एनिमल में हमारा एक ग्रुप है ह्यूमन, कोई भी चीज के आगे लिखा रहेगा ह्यूमन, हेपेटाइटिस ए वायरस, ह्यूमन रिलेटेड। चिकन पॉक्स इज बिकॉज द पॉक्सेस विच आर सीन ऑन द बॉडी, आपके ऊपर जो छोटे छोटे पॉस्ट्यूल आ जाते हैं ना चिकन पॉक्स में, सिमिलर थिंग इज सीन विद द बर्ड ऑल्सो। तो वैसे ही काउ पॉक्स भी, देखो ऊपर एक वर्ड था काउ पॉक्स, तो काउ को भी हो सकता है, लेकिन उसका वायरस अलग है, और वो वायरस हमारे पास वहां से, यू नो एड्स वायरस मंकी से आया, सुना तो होगा जरूर, सुना है ना, HIV मंकीज से आया है, पर मंकी को एड्स नहीं होता क्योंकि वो उसके लिए नहीं बना, वायरसेस आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, सो डिजीज का नाम वैसा रखा हुआ, ओके? चिकन पॉक्स, आई होप यू नो इट इज हर्पीज वायरस, हर्पीज, ओके? सो वो याद रखना क्लास। यू नो चिकनगुनिया, चिकनगुनिया बीमारी सुनी है?
आर यू गेटिंग इट? तो वेक्टर वहां से हो सकता है पर उसको बीमारी नहीं होती, हमको होती। आर यू गेटिंग इट? स्वाइन फ्लू सुन रहे हो आजकल? स्वाइन फ्लू पिग से आ रहा है, पिग। फिर से चाइना में एक वायरस स्वाइन फ्लू सुना है? स्वाइन फ्लू पहले भी था, बहुत पहले। तो स्वाइन यानी कहाँ से आ रहा है वायरस? पिग से। पर पिग को फ्लू हो रहा है? नहीं, वो सिर्फ उसका वेक्टर है उसके बॉडी में। प्लेग सुना है? प्लेग कहाँ से आता है? रैट ना, रैट, माइस, तो वो क्या है वहां पे? वेक्टर। आर यू गेटिंग? तो वायरसेस के लिए बहुत बार वही एनिमल का नेम यूज हो, ठीक है? ओके, सो चिकन पॉक्स वायरस हमारा वाला हमको चिकन पॉक्स देगा, ह्यूमन चिकन पॉक्स वायरस। आर यू गेटिंग इट? उससे चिकन को कुछ नहीं होगा। वायरसेस आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक। अभी जो आप कोविड-19 सुन रहे हो वो बैट से आया है, करेक्ट? ऐसा हमने उसके रिसर्च में देखा है। पर बैट को कोरोना हो रहा है क्या? नहीं। किसको हो रहा है? हमको हो, है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स लाइक, ओके। ये रहा हमारा एडवर्ड जेनर का। कैन यू सी सारा नेल्स? ये एक मिल्कमेड है, इट वाज इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स, ठीक है? यहाँ पे इसके बॉडी से फ्लूइड लेके उसने किसको दिया? जेम्स को। किसने दिया? एडवर्ड जेनर ने। देखो वो ट्राई कर रहा था वैक्सीनेशन, तो जेम्स को छोटा सा काउपॉक्स हुआ, लेकिन काउपॉक्स होने की वजह से उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। देखो उसको समझ गया कि अगर हमने किसी के बॉडी से सेम स्मॉल पॉक्स का वायरस लिया और वेरी लाइट वर्जन दिया तो जेम्स रिमेन्स अनइंफेक्टेड। देखो जेम्स को हुआ क्या स्मॉल पॉक्स? ये दिख रही है ये लेडी, उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था, उसमें से थोड़ा सा जेम्स को दिया गया, लेकिन जेम्स कुड फाइट विद इट क्योंकि उसने ऑलरेडी काउपॉक्स से फाइट करना सीख लिया था। दोनों वायरसेस हैं, ओके? तो दैट हेल्प एंड दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन कि बॉडी को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस मिल जाए तो बॉडी विल फाइट बेटर। अब हमने वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव कर लिया है। एडवर्ड जेनर एक्चुअली 1 to 2, 2 to 4 ऐसे ह्यूमन के धीरे धीरे कर रहा था। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि जेम्स को माइल्ड केस ऑफ क्या हुआ है? देखो इधर काउपॉक्स, करेक्ट? और फिर बॉडी में हमने कौन सा डाला? पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, लेकिन उसको हुआ क्या? नहीं, ही रिमेन्स अनइंफेक्टेड। सो बॉडी लर्न्स एंड ही जेम्स की बॉडी की वजह से who realized? Edward Jenner, that yes we can fight with this and he learned this, ठीक है? So this is vaccination process which put forward कि body immunity develop कर सकते। प्लस आप में से जिनको भी चिकन पॉक्स हो गया हुआ है ना, काफी लोगों को, तो क्या हमें डर है फिर से होगा? नहीं, आंसर क्या है कि नहीं होगा, isn't it? क्यों? बॉडी ने उससे फाइट करना सीख लिया। Surely you must have heard people getting chicken pox again also, but that is quite rare. That is quite rare. So first time पे when the body doesn't respond well, then there is a chance of second infection becoming more. Otherwise, एक बार chicken pox हो जाता तो हमको दूसरी बार नहीं होता. That is how the whole system works. क्या आप सबने चिकन पॉक्स का वैक्सीन लिया है? मोस्टली नहीं, am I correct? It's not a compulsory vaccine. मोस्टली नहीं लिया, ठीक है? तो क्यों? चिकन पॉक्स इज नॉट अ किलिंग डिजीज, तो उससे इन्फेक्ट होके हम हमारे इम्यून को क्या करते हैं? बूस्ट कर देते, स्ट्रॉन्ग कर देते, और फिर our immune system learns to respond to one more category viruses. But that doesn't mean you will fight with dengue virus by chicken pox. No, वो नहीं हो सकता, okay class? But body का immune system active तो हुआ ना? Are you getting it? इसीलिए ज्यादातर चिकन पॉक्स वैक्सीन नहीं ली जाती। पोलियो कैन बी वेट कि चलो एक बार पोलियो हो जाए देख लेते हैं, नहीं, तो उसकी वैक्सीन दी जाती क्योंकि दैट डिजीज इज वेरी वेरी ड्रेडेड, इट इज क्रिपलिंग, पर्सन हैंडीकैप हो जाता,
तो हम एक बार हैंडीकैप होके फिर वेट करेंगे? नहीं। तो कुछ डिजीजेस के लिए वैक्सीन दी जाती है, कुछ के लिए नहीं दी जाती, और इनसे फ्री दी जाती है, और दूसरा होता है फ्री नहीं दी। चिकन पॉक्स की वैक्सीन अपने एक्सपेंडिचर पे ले सकते, ठीक है, पर गवर्नमेंट फ्री नहीं दे रही, बिकॉज ठीक है चिकन पॉक्स हो रहा है, उससे किसी की डेथ नहीं हो रही, इट्स फाइन। गेटिंग इट? यस, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इम्यून सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, to distinguish self from non-self, who is foreigner and who is me. 1 minute class. Class, can you hear me? Yes, miss. Yes, miss. Fine. Somebody is asking, vaccines are mostly a particular dead virus. हाँ, you are right. Mostly they are dead virus, but some are live. Okay, some are very small dose दिया जाता है. Some are half dead. वैक्सीन के बहुत सारे आगे टॉपिक है. ओके, कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं आ रही? ओके, इज योर क्वेश्चन. बिकॉज वायरसेस में एक प्रॉब्लम है, वो म्यूटेट करते हैं, वो खुद को बदलते रहते हैं. सो सपोज आई लर्न हाउ टू फाइट विद वायरस ए, ठीक है, फिर आ जाता है उसका दूसरा फॉर्म वायरस बी, वो एक नए रूप में सामने आ जाता है. फिर आ जाता है वायरस सी. तो ऑलरेडी इफ यू हैव रेड अबाउट कोविड-19, उसके ऑलरेडी 10 म्यूटेटेड वर्जन है, 10 वर्जन ऑलरेडी एक्टिव हैं. आप सुन रहे होंगे ना कि कुछ लोगों को बहुत सीवियर हो रहा है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, जरा भी खांसी नहीं आ रही, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत खांसी आ रही है और ठीक हो जा रहे हैं, और कुछ लोगों के एकदम रेस्पिरेशन बंद भी हो जा रहा है और उनकी डेथ हो जा रही है. करेक्ट? यू मस्ट बी रीडिंग ऑल दिस कि कभी एकदम यंग पर्सन है, कभी ओल्ड है. तो क्लास वो वायरस का कौन सा फॉर्म बॉडी में आ रहा है उस पे है. एंड वी आर एट वेरी हाई रिसर्च लेवल. तो ये जो कोरोना है, ये दिस इज अ ग्रुप ऑफ सर्दी का वायरस है, कोल्ड वायरस. ओके, तो सर्दी के लिए कभी आपको वैक्सीन मिली है? नहीं, क्योंकि सर्दी अभी तक किल नहीं कर रही थी क्लास. अभी तक हमें सर्दी से किसी की डेथ नहीं हो रही थी. तो ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में आ गया और इट इज किलिंग. तो रिसर्च चल रही है, तो वी हैव टू सी कि वो कितना म्यूटेट होगा. और अगर 10 तरीके का भी है तो विल फाइंड 10 वैक्सीन. लेकिन वो अगर 100 तरीके का है तो फिर हम सर्दी की तरह उसकी वैक्सीन नहीं बना पाएंगे. फिर योर बॉडी हैज टू फाइट विद इट बाय डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम. जैसे क्लास एड्स वायरस है ना, उसकी वैक्सीन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एड्स तो 1984 से चल रहा है इधर, बिकॉज वो भी म्यूटेट होता है, और वो म्यूटेट फॉर्म में वैक्सीन ढूंढने में बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा. मतलब इट इज लाइक you fight with one, second one comes, you fight with two, third comes, fight with three, fourth comes, and we are in trouble like this. Are you understanding this? So that is the problem. But yes, बायोटेक्नोलॉजी है, काम हो रहा है, बहुत एक्सपेंडिचर भी हो रहा है. फिलहाल के लिए तो हमको स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर चल रहा है इम्यून, वो सिस्टम आपका चाहिए सबसे ज्यादा. और सेकंड लेवल पे जो चैप्टर हो गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है सबसे ज्यादा. ठीक है, ये दोनों सिस्टम आपको फिलहाल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रखना. ठीक है, टिल अ वैक्सीन कम. और क्लास अगर आज भी वैक्सीन आ जाए, आज भी, तो इंडिया में सबको मिलते मिलते शायद 6 महीने लग जाए. ओके, तो हमको वैक्सीन मिलेगी. हम यू नो वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ so many crores. Okay, कब बनेगी, कब मिलेगी? So count at least 6 months in hand. So 6 months, let's be very strong and let's fight. Okay, let's protect. वो आपको ज्यादा ध्यान में रखना है. सोशल लेवल पे you have to be very responsible. ठीक है? Okay, so we move ahead. अब आया 2 important term जो पूरे चैप्टर में चलने वाला. Any foreign substance, living या dead, living या dead, coming into the body, because of which the immune system becomes alert, is known as antigen. Common language में बोलिए enemy, दुश्मन, non-self. So any foreign substance
which attacks your body, invades your body, invading मतलब attack, okay, and is capable कि बॉडी का सिस्टम बोलते हैं ये कौन आ गया, अलर्ट हो गया इम्यून सिस्टम. Such a organism or a substance is known as एंटीजन, हमारे अगेंस्ट एंटीजन. और बॉडी उससे फाइट करने के लिए केमिकल्स बनाएगी एंड दोज आर नोन एज एंटीबॉडी. व्हाट आर दे नोन एज? द एंटीबॉडी. ठीक है क्लास, एंटीजन से फाइट करने के लिए बॉडी बनाती एंटीबॉडी. एम आई वेरी क्लियर? और अभी अभी इमीडिएटली आप एक स्टेटमेंट लर्न करेंगे परमानेंटली फॉर द चैप्टर. एंटीबॉडी never kills the antigen. By heart this. आप लोग ये wrong statement लिखते हो हर बार. Antibodies kill the antigen. No, no. Antibody fights with antigen, but antibody never kills. Please don't use that word. Okay? आज ही अभी आप लर्न कर लेंगे. Antibody never kills. वो दूसरे तरीके यूज करेगी, but antibody cannot go and kill the antigen. ठीक है, but antibodies are against antigen. Yes, they are against. And who makes antibodies? Immune system. अगर एंटीजन को पहचाना तो पहचाना कि ये नॉन सेल्फ है, पहचाना ही नहीं तो नथिंग, पहचाना नहीं तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी, फिर वी आर गोइंग टू सफर. ओके क्लास, इज दैट क्लियर? ओके, ये देखिए है ना, सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान को यहाँ ये दिख रहा है एंटीजन, उसको बॉडी सेल कैसे देख रहा है गुस्से में, वो नॉन सेल्फ है. और ये देखो ये सेल्फ है. तो हमारे बॉडी सेल्स के पास, आप कॉलेज कैसे जाते हो आई कार्ड लेके, वैसे ही कुछ मार्कर्स होते हैं जो बताते हैं ओके आई एम योर फ्रेंड. और एंटीजन के पास वो मार्कर्स मिसिंग होते. ठीक है, देखो यहाँ पे ये बैक्टीरिया अंदर आया और बॉडी सेल के अंदर वायरस आया, इनको बॉडी ने आइडेंटिफाई किया क्या, एंटीजन. लेकिन इस सेल को आइडेंटिफाई किया एज सेल्फ. देखो इट्स स्माइलिंग ना, गेटिंग इट? और यहाँ पे देखो नो इट इज फ्रॉनिंग, नो यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ माय बॉडी. ठीक है, सो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ठीक है, देखो एंटीजन आ गया. पैथोजन, एंटीजन के लिए वर्ड क्या, पैथोजन. इमीडिएटली यहाँ पे देखो बॉडी ने क्या बनाया, ये स्टार शेप क्या है क्लास, इट इज अवर एंटीबॉडी. देखो एंटीबॉडी विल फाइट विद एंटीजन. हु कम्स इन, एंटीजन. बॉडी ने उसके रिस्पॉन्स में क्या बनाया, एंटीबॉडी. एंटीबॉडी इज गोइंग टू फाइट विद एंटीजन. कैन यू सी दैट? यस, वो स्टार क्या है, एंटीबॉडी. नीचे कौन है, एंटीजन. ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के लिए है. ठीक है, तो पर पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ना कि ये एंटीजन है, तब फाइट. ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? इम्यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. वेरी फेवरेट क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम. हाँ, बोथ ऑफ देम. innate and adaptive. Innate and adaptive. Now learn the word by heart. Innate का मतलब होता है by birth. आप मैं जब से हम पैदा हुए innate immunity हमारे पास है, तब से. Adaptive का मतलब होता है बाद में, as you live, you act. Our genetic makeup, our genes, our DNA, our body का जो भी सिस्टम, उसकी वजह से हमारे पास कुछ चीजें बायबर्थ होती हैं. इट इज नेचुरल इनबॉर्न डिफेंस सिस्टम. क्लास में ये बोलना चाह रही हूँ, एक जब बेबी बॉर्न होता है, छोटा सा बेबी, ओके, वो छोटा सा बेबी
1 day old, क्या वो फाइट नहीं करेगा? क्या वो बीमार पड़ जाएगा तुरंत? नहीं, बॉडी ने उसको ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है फाइट करने के, ये दिया है, वो दिया, सो मेनी थिंग्स, ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। इट इज इनबिल्ट, यू आर नॉट विदाउट एनी डिफेंस सिस्टम, बट धीरे धीरे हमको और सीखना है। So innate immunity is by birth. Okay, it is there in the body by birth. It is because of our genetics. Okay, क्लास, अगर आपके जीन स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो सकती, जीन्स वीक है तो वीक भी हो सकती है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेचुरल है, कहीं से आई नहीं है मेरे पास, और इट इज नॉट अफेक्टेड कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तब मैं सीखूंगी फाइट करना, नो, ये बिना माइक्रोब के है। जब पोलियो वायरस आएगा मैं फाइट करूंगी, वो तो बाद में होगा, बिना उसके भी मैं फाइट करूंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ कॉन्टैक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसके बिना। लेकिन दिस इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। व्हेन आई से नॉन स्पेसिफिक मींस it is going to fight with bacteria also, virus also, amoeba also, fungus also. So it is not specific, okay, that I will fight with virus. Okay, now I'll fight with typhoid bacteria. Okay, now I'm fighting with TB ka bacteria. So it is not like that. It is always non-specific. It is common for all. ठीक है? And it is having types of barrier. तो ये फाइट से ज्यादा क्या करता है? क्या करता है? पढ़ो, प्रिवेंट्स एंट्री। बॉर्डर है हमारा, इंडिया का बॉर्डर है, तो एनिमी पहले अंदर ही क्यों आए? उधर ही उसको रुकाओ ना, उसको अंदर ही नहीं आने देना है, एंट्री बंद करो उसकी। अंदर आके तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, टेररिस्ट अंदर आ चुके हैं, यस, तो नाउ यू सफर, वी आर सफरिंग ना, टेररिस्ट हमारे कंट्रीज में है, हमारे कंट्री में क्या कर रहे हैं, कभी बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बराबर है, एंट्री मिल गई, लेकिन एंट्री रुकाओ ना, वी हैव टू एंट्री कैसे भी, हाउ कैन दैट बैक्टीरिया कम इन माय बॉडी, हाउ कैन द वायरस कम? सो मिस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर नहीं बन नहीं, अपने आप नहीं बन सकता, बनने के लिए भी एक बैक्टीरिया को अंदर जाना हेलो पड़ेगा ना, नहीं बन सकता, अपने आप नहीं बन सकता। क्या सपोज मेरी बॉडी में टाइफॉइड बैक्टीरिया गया तो फिर वो अपनी कॉपी बनाएगा बहुत, लेकिन पहले एक अंदर तो जाए, तो इननेट क्या करता है, नहीं अंदर नहीं आने देने का, अच्छा आ गया थोड़ा अंदर तो उधर ही उसको मारो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट इज स्पेसिफिक, फर्स्ट ब्लॉक द एंट्री। सो इननेट इम्यूनिटी का मेन डिफेंस इज बैरियर्स, रुकावटें, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड barriers, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डू यू वांट टू नो अबाउट नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक एक्सप्लेन करूं और यू वांट, अच्छा, थर्ड इन द लाइन, नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कांटेक्ट विद माइक्रोब, ये एक्सप्लेन करूं? ओके, सी, अंडरस्टैंड करो, इननेट इम्यूनिटी, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारी स्किन, यू वी ऑल हैव स्किन, उधर बैक्टीरिया है, क्या उसको एंट्री मिलेगी? नहीं। वायरस आया, एंट्री मिलेगी? नहीं। अमीबा आया, एंट्री मिलेगी? नहीं। सो दिस इज इननेट का बैरियर, इट इज इननेट का बैरियर। नाउ क्या स्किन ने ये बोला पहले मुझे बताओ हु इज बैक्टीरिया? नहीं, विदाउट एनी प्रायर कॉन्टैक्ट स्किन सबको रुका रहा है लाइन से। हाँ, स्किन में कट आ गया, स्किन फट गई है, अब वायरस को एंट्री मिल जाए, क्योंकि बैरियर क्या हो गया? एक्सपोज। अब बैक्टीरिया को एंट्री मिल जाए, क्योंकि बैरियर, इसीलिए कुछ भी कटता है तो उस पर आप डेटॉल लगाते हो, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हो ना तुरंत, ताकि एंट्री ना मिले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो स्किन को लर्न नहीं करना है, स्किन इज गोइंग टू फाइट विद एवरीथिंग, बट क्या फाइट है उसका? बैरियर, खाली रुकाने का काम। लेकिन अगर स्किन कट गई है तो फिर स्किन कुछ नहीं कर सकती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो स्किन को हमको प्रैक्टिस नहीं देना है, पहले से कांटेक्ट नहीं करवाना है माइक्रोब से, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज
Non-specific, it is going to stop the fungus also, virus also, bacteria also, protozoa also, worms also, सबको रुकाएगा वो. Are you getting it? So it is non-specific and it does not require any practice. It can work directly by birth. छोटे बच्चे की भी स्किन उतना ही काम करेगी जितनी एल्डर्स की करेगी. सबकी स्किन सेम काम. Are you getting it? Yes. So उसके barriers. अब क्लास, अब स्टार्ट हुआ हमारा टॉपिक. टाइप्स ऑफ बैरियर. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बैरियर. हाउ मेनी टाइप्स? 5. ओके, यहाँ पे देखिए. एपिथेलियल, फैगोसाइटिक, कॉम्प्लीमेंट सेल, नेचुरल किलर सेल, डेंड्राइटिक सेल. के तो मैंने खाली नाम दिखा है. अभी हमें टॉपिक्स पे जाना है. तो हमारा फर्स्ट बैरियर आ गया एपिथेलियल बैरियर. और क्लास, आई डोंट नो व्हाई और क्यों बोर्ड ने उसको बहुत लंबा चौड़ा करके दे दिया. पहले ये 2 लाइन थी. कितनी लाइन थी? 2. नीट वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे. एनसीईआरटी में अभी भी छोटा ही है, ठीक है. तो नीट वालों को घबराना नहीं, पर हाँ बोर्ड वालों को है, और बोर्ड वाले अब सब हो, ठीक है. सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव इंक्रीज, बट यू कैन सी एपिथेलियल बैरियर. आपने 11th में टिश्यू पढ़ा था. एपिथेलियल टिश्यू याद है? कवरिंग टिश्यू, मतलब ये सबसे ऊपर, सबसे ऊपर. सो सी द बैरियर्स. एपिथेलियल बैरियर, द इंटैक्ट स्किन हमारा बैरियर. म्यूकस कवरिंग, जैसे आप मुंह में कुछ डालते हो, आपके पूरे मुंह में क्या है? सलाइवा है ना, म्यूकस है. गले में क्या है? म्यूकस है. फूड पाइप में क्या है? म्यूकस है. सो दे आर एपिथेलियल बैरियर. एंट्री पॉइंट पे ही रुकाएंगे, ठीक है. एपिथेलियल लेवल पे और आ जाओ. स्किन कर रही है, स्वेटिंग कर रही है. स्वेट रिलीजेस सॉल्ट. सॉल्ट क्या करेगा? इज गोइंग टू एक्ट एज अ बैरियर. आर यू गेटिंग इट? इट इज बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिया को मारने वाला. नमक में कभी कीड़े पड़ते हैं क्लास? घर में नमक देखा है ना? कोई भी चीज को प्रोटेक्ट करना है तो हम उसमें सॉल्ट डाल देते हैं ना. प्रोटेक्टिव है. कैन आई यूज द वर्ड प्रिजर्वेशन के लिए? वैसे ही व्हेन योर बॉडी स्वेट्स, उसमें सॉल्ट भी बाहर आता है. वो सॉल्ट इटसेल्फ इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, ठीक है. पर कहाँ? बाहर की तरफ. इमीडिएटली ना, एपिथेलियल है. सीबेशियस ग्लैंड, हमारे बॉडी में ऑयल रिलीजिंग ग्लैंड. अपने नोज को टच करो जस्ट नाउ. अभी आप मेरे साथ बैठे ऑलमोस्ट 45 मिनट से. थोड़ा सा ऑयली हो गया है क्या? है ना? डिपेंड्स ऑन योर स्किन, नो डाउट. तो वो ऑयल कहाँ से आ गया? Which gland? Sebaceous gland has released sebum. sebum हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. कोई भी फंगस आया वो उस ऑयल में चिपक जाएगा. बैक्टीरिया उस ऑयल में चिपक जाएगा. डस्ट उसमें चिपक जाएगा और आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा. बैरियर है वो, ठीक है. हाँ, श्योरली जब आप ठीक से हाथ मुंह नहीं धोते हो तो वही डस्ट, वही बैक्टीरिया जो ऑयल में फंसा हुआ है, फिर आपको पिंपल्स, छोटे मोटे इन्फेक्शन होने लगते हैं ना, जब आप अपना हाइजीन नहीं रखते, ठीक है. क्लास, स्वेट में सॉल्ट, इसलिए पूरी बॉडी स्वेटी है तो बैठे रहते हैं क्या हम? नहीं. हम क्या करते हैं? वो एक अलग मैकेनिज्म. पर जसना बॉडी ने क्या किया आपके लिए? इमीडिएटली बॉडी क्या बना रही? स्वेटिंग. ऑयल, ऑयल की वजह से, ऑयल इज अ बैरियर. इट इज स्टिकी, इट इज वैक्सी. सिबम, ठीक है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखो म्यूकोस, ये आपने अभी अभी पढ़ा था रेस्पिरेशन में ना. इट स्टॉप्स मेनी बैक्टीरिया. इट वर्क्स एज अ डिफेंस. म्यूकस में बैक्टीरिया ट्रैप हो जाएगा और अंदर नहीं जा पाएगा. डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाएगा, नहीं जा. नोज, अभी कल ही खत्म है. नोज प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रोब. बट बॉडी स्वेट क्यों? आपको कूल करने के लिए. Sweating is a thermoregulation. Whenever you do any hectic activity, anything which generates heat, so body temperature will go high. पर हम तो
रेगुलेटर्स हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितने पे रहना चाहिए, 37 पे। तो व्हाट विल द बॉडी डू, व्हाट विल द बॉडी डू, कूल डाउन। कूल डाउन के लिए क्या करेगी, स्वेट, स्वेट के साथ पानी बाहर जा रहा है, पानी के साथ हीट बाहर जा रहा है। स्वेट देखो, आपको बहुत पसीना आता है तो फिर ऐसा ठंडा फील होने लगता है, पसीने के ऊपर ठंडा फील होता है फैन वैन के नीचे, क्योंकि बॉडी ने आपको क्या कर दिया, कूल डाउन। सो स्वेटिंग इज thermoregulation. Side bite is excretion. और अभी हम पढ़ रहे हैं साइड बाइट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन डिफेंस, लेकिन वो उसका मेन फंक्शन क्या है, थर्मोरेगुलेशन। जब बुखार आता है तो स्वेट करते हो, है ना, करते हो ना, फिर बुखार चला जाता तो क्या होता है स्वेटिंग से, वो जो ऊपर टेम्परेचर चला गया था वो नीचे आ गया, आपकी बॉडी ने बहुत सारी हीट बाहर फेंक दी। यस क्लास, चाय का कप है, उससे इवेपोरेशन हो रहा है तो वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होता है ना, वैसे ही आपकी बॉडी जब स्वेट हो रही है, आप इमेजिन कीजिए इवेपोरेट हो रहा है। क्या इवेपोरेट हो रहा है, सिर्फ पानी नहीं, उसके साथ हीट भी जा रही है और आपकी बॉडी कूल हो जाए। सो स्वेटिंग का मेन फंक्शन इज थर्मोरेगुलेशन, बट साइड बाय बॉडी इज टेकिंग एडवांटेज एंड ट्राइंग टू हेल्प यू, ठीक है। सो नोज प्रिवेंट्स डस्ट पार्टिकल, हेयर्स हमने नोज देखा था, याद है ना आपको, नेजल हेयर्स, ठीक है, अगर उससे भी बाहर चले गए तो हमारे पास सीलिया है। किधर है सीलिया क्लास, रेस्पिरेटरी और फूड पाइप दोनों में है ना सीलिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक और फूड पाइप में सीलियाज आर बीटिंग, करेक्ट। कुछ भी चीज खराब है तो आपकी बॉडी वॉमिट कर देती, सीलिया पूरा उठा के बाहर फेंक देती, और कुछ भी चीज हार्मफुल है तो आपकी बॉडी कॉफ करती है ना, सीलिया उसको बाहर करती। तो देखो, द कॉफ रिफ्लेक्स इज इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, आपने ये डिटेल में पढ़ा था, कॉफ रिफ्लेक्स याद आया, स्नीजिंग रिफ्लेक्स है ना, सीलिया कुछ भी आपने सॉलो किया जो गलत है आउट, कुछ भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में आए विच शुड नॉट बी देयर आउट। पर ये सब कौन से लेयर में क्लास, कहाँ पे, ये अंदर नहीं है, किधर है, किधर है, एपिथेलियल, ब्लड तक नहीं पहुंच रहे हम, ऊपर का लेयर, सबसे ऊपर का लेयर एपिथेलियल, ठीक है। सो दिस इज एपिथेलियल बैरियर्स। just see in red what you can see, skin, mucus, sweat, sebaceous, hair, cilia, coughing, are you getting it? वैसे बहुत इजी है ना, यू कैन इजीली चेक इट, है ना, और उसके ऊपर एक एक लाइन लिख देना है, ठीक है, ओके। एपिथेलियली चल रहा है, माउथ में सलाइवा, इज इट, सलाइवा अफेक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें एंजाइम्स होते हैं, लाइजोजाइम है ना, लाइजोजाइम विच किल्स द माइक्रोब। यू कैन सी स्टमक में चला गया बैक्टीरिया, ओके। HCl कितना है स्टमक का पीएच, याद है कुछ 11th स्टैंडर्ड में स्टमक का पीएच कितना बोला था हमने, 1.5 to 2, हाईली एसिडिक, तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी इतने हाई पीएच पे, आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर killed by HCl secreted by stomach, but who is secreting, epithelial cells, ठीक है। यूरिन, यूरिन में भी बहुत बैक्टीरिया, आजकल आप सुन रहे हो, पानी पियो बहुत सारा, गर्म पानी पियो, बार बार सुनते हो, करते हो कि नहीं है, पानी क्यों, फ्लशिंग एक्शन, वो वायरस को फ्लश आउट कर रहा है, बैक्टीरिया को फ्लश आउट कर रहा है, थ्रो आउट कर रहा है, जितना पानी ज्यादा पियोगे उतना जल्दी वायरस बाहर। सर्दी होती तो नाक से क्या आ रहा है बाहर, पानी बाहर आ रहा है, वी से द टर्म ना रनी नोज, रनी नोज, यस, कल ही किया था हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो रनी नोज क्या करता है, पानी बाहर फेंक रहा है, क्यों फेंक रहा है वो पानी बाहर, पानी नहीं, उसमें वायरस और बैक्टीरिया को वो फ्लश आउट कर रहा है, जैसे आप पानी से कोई भी चीज को साफ करते हो ना, आपकी बॉडी भी वही है। सो यूरिन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फ्लूइड देखिए, वी हैव अ वर्ड हियर, सीमेन, सीमेन इज रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, उसमें भी स्पर्माइन, स्पर्माइन, करेक्ट, जिंक क्या करते हैं, एंटीबैक्टीरियल, ताकि सेमाइनल फ्लूइड से भी इंफेक्शन
नहीं होना चाहिए, करेक्ट। हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी फ्लूइड है ना, सेमाइनल एंड वेजाइनल। यू सेड रिप्रोडक्शन हो गया, करेक्ट। चैप्टर हुआ है ना क्लास, है ना। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया ना। No, ma'am. Reproduction in plants हुआ है सिर्फ। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, पेपर 1 हुआ, ठीक है। एनीवे क्लास, हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्लूइड है जिसमें स्पर्म फ्लोट हो रहा है, ओवम वजाइनल फ्लूइड है ना। इट्स नॉट अ ड्राई जोन, इट्स अ वेट जोन। तो वहां पे ये फ्लूइड में इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। गलती से बैक्टीरिया आ गया तो इट शुड बी किल्ड, इट शुड बी किल्ड। तो व्हाट इज दैट? कैन यू सी द एंटी बैक्टीरियल वर्ड, है ना। कंजक्टिवा, आपकी आंखें पूरी वेट होती है हमेशा, उसमें क्या होता है? टीयर्स होता है। हु सिक्रीट्स टीयर? लुक एट द वर्ड लैक्रिमल सिक्रीशन, दिखा आपको? एक ग्लैंड है लैक्रिमल ग्लैंड, और टीयर्स में क्या होता है? एंजाइम which prevent any bacteria to grow, so that is helping us। इसको इन्फेक्शन कम होता है ना। कंजक्टिवाइटिस वायरल इन्फेक्शन, कभी कभी आप बोलते हो ना आंख आ गई है, हो सकता है। कभी कभी छोटा सा माइनर सा बॉयल आ जाता है आई पे, पर यू मस्ट हैव नोटेड आई इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाते हैं बिकॉज फुल टाइम बॉडी, आपकी आंख में जरा सा भी, अभी आप बैठे हो और सपोज कुछ गया, इमीडिएटली बहुत सारा पानी बाहर आता है। यस, टीयर्स, लैक्रिमल सिक्रीशन। आर यू गेटिंग इट? एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस lysozyme, lysozyme which kills the bacteria, does not allow their growth। समझे? Are you understanding? सी क्लास, हम रोते हैं, इमोशनली टीयर्स बाहर आते हैं, वो एक रिस्पॉन्स है, और डिफेंस के लिए बाहर आते हैं, वो एक रिस्पॉन्स है। एक सिंपल चीज देखो, आप जब प्याज काटते हो, प्याज है ना, ओनियन कट करते हो, उतने से केमिकल से इमीडिएटली आंखें एक्टिव होके पानी बाहर आने लगता है, करेक्ट? क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड करती कि ये क्या चीज है। आर यू गेटिंग इट? श्योर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लाइसोजाइम आता है, लाइसोजाइम कैन फाइट। आर यू गेटिंग इट? इट इज वेरी वेरी एक्टिव, बट कभी कभी इन्फेक्शन हो सकती, ठीक है। तो लाइसोजाइम is very active against bacteria, you can see it is thermolabile, high temperature पे भी काम करता है। it is a basic protein which act as muramidase। कुछ याद है muramidase? बैक्टीरिया का outer covering is made up of muramic acid। बैक्टीरिया का जो outer covering है, cell envelope, prokaryotic cell is made up of muramic acid, जिसको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? म्यूरामिडेज, जो किसमें प्रेजेंट है? लाइसोजाइम, एक एंजाइम है। बट कैन यू सी इट इज वर्किंग ओनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा लिमिटेशन है, मतलब हर बार वो प्रोटेक्ट कर लेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट स्टिल आंखों में इन्फेक्शन कितना होता है? रोज होता है क्या? हर महीने होता है? नहीं होता ना। सो वी आर क्वाइट good in defense through the epithelial barriers। ठीक है क्लास, are we clear with this part? Very sure? देखिए केमिकल बैरियर्स दूसरे तरीके से दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ स्वेट, ऑयल हमने डिस्कस किया, सेबम, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस, करेक्ट? they kill or stop, either they kill or they are barriers, वो रुकाते हैं, उनकी ग्रोथ को रुकाते हैं, बैक्टीरिया को रुकाते हैं केमिकली, ठीक है। बट ये केमिकल कहाँ से आए थे? एपिथेलियल टिश्यूज। देखो क्लास, एक फास्ट रिकैप इसमें दिख रहा है हमको। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिया, म्यूकस, रिफ्लेक्सेस, व्हाट आर रिफ्लेक्सेस? कॉफ रिफ्लेक्सेस ना, खांसी, पीएच, HCl डिस्कस हुआ था, स्टमक का, एसिडिटी ना, लाइसोजाइम अभी पढ़ा हमने, फैटी एसिड, डिफेंसिव मतलब डिफेंस वाले केमिकल्स, जो स्पर्मिन पढ़ा था आपने, नॉर्मल फ्लोरा, जो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल नेचुरली आ जाते, जैसे अगर आपने टर्मरिक खाया, इंडिया के हर चीज में टर्मरिक होता है ना, तो उससे भी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है।
जेनेटिक रेजिस्टेंस, ये ह्यूमन में ये रेजिस्टेंस है, काउ में वो रेजिस्टेंस है, तो वो स्पीशीज और इंडिविजुअल वाइज डिफर करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जेनेटिक रेजिस्टेंस हमारी स्पीशीज और इंडिविजुअल, फॉर्चुनेटली ह्यूमन बीइंग में कोई स्पीशीज नहीं, लेकिन ऐसा सुना होगा ना, जैसे एशियन लोगों को ये बीमारी कम होती है, अमेरिकन को ये ज्यादा होती है, तो वो क्या है क्लास, हमारा जेनेटिक डिफरेंस है इन स्पाइट ऑफ बीइंग ह्यूमन, इन स्पाइट ऑफ वी ऑल बीइंग ह्यूमन। इंडिविजुअल डिफरेंस, आपका इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, है ना? तो आपको दिख रहा है इधर पीएच लो कर सकते हैं, म्यूकस है, स्वेट है, स्किन हमारी इंटैक्ट है, उस पर कोई कट नहीं है, सीलिया है, सलाइवा है, देखो नोज में म्यूकस दिख रहा है, टीयर्स आई में दिख रहे हैं, सीबेशियस ग्लैंड है स्किन के ऊपर, सो ऑल दैट इज यूरिनेशन, थ्रोइंग द वेस्ट आउट, डिफिकेशन, जो डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर जाता है, तो वहां पे भी बहुत सारे केमिकल्स है विच हेल्प टू प्रोटेक्ट। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि बॉडी के किसी भी ओपनिंग से, वो नोज हो, आईज हो, एनल ओपनिंग हो, यूरिनरी ओपनिंग हो, किसी भी ओपनिंग से पैथोजन अंदर आ सकता है। मुंह खोला मैंने, नोज ओपन है, कान हमारे ओपन है, कान में भी ईयर वैक्स होता है ना, ईयर वैक्स जिसमें कचरा पूरा चिपक जाता है, फिर आप उसको निकाल दो। आर यू गेटिंग इट? यस। इज द फर्स्ट डिफेंस क्लियर? epithelial. Now class, can you write a 2-mark short note with me? Please look at it as a 2-mark question. Please look at it as a 2-mark question. लिख सकते हो? देखा जाए तो बहुत इजी, आप अपने मुंह से बोलोगे तो भी म्यूकस, स्वेट, सीलिया, टीयर्स, हेयर, कितनी चीजें अपने आप हमारे माइंड में आ रही है ना। एसिडिटी, HCl इन स्टमक, और उस पे एक एक लाइन लिख देना। सारे नहीं भी लिखे तो कोई भी 4 पॉइंट लिखे तो भी आप लिख पाओगे इजीली। These are घर में एसी लगी है? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? Nasal somebody is asking, this is the opening. कोई भी orifice मतलब opening. Okay, I'm continuing till 8:30. Fine. Okay, so I'm continuing. Huh? We have done the first barrier, that is the epithelial. ये कौन है? क्लास मैं सोच रही थी फिजिकल बैरियर आज खत्म कर देते। यस, हाफ शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, 25 मिनट्स एक्चुअली। ठीक है? हाँ मैम, करते हैं। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है ना? चैप्टर बड़ा है क्लास, तो एक टाइप का बैरियर हो जाएगा, तो आपके पास भी पढ़ने के लिए कुछ होगा। ठीक है? और ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने इलेबोरेट नहीं किया क्लास, टेक्स्ट बुक में इतना दिया हुआ। मैं जब भी बोलती हूँ टेक्स्ट बुक तो टेक्सुअल है, ठीक है? और जब टेक्सुअल नहीं होता तो मैं बोलती हूँ ये मैंने आपको एडिशनल बताया। तो ये पूरा टेक्सुअल है जो सामने है, ये पूरा टेक्सुअल है जो सामने है। ठीक है? रेड में मैंने हाईलाइट किया, एटलीस्ट वो वर्ड आपके माइंड में चले जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है? ओके, ये इमेज टेक्सुअल नहीं है, बट वही चीज रिपीट हो रही थी। ठीक है? अब आए एंटी माइक्रोबियल बैरियर। एंटी माइक्रोबियल बैरियर, ठीक है? द बी पार्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन ब्लड, हमारे ब्लड में टिश्यू, टिश्यू मतलब एपिथेलियल, कनेक्टिव, बहुत सारी टिश्यूज है, न्यूरॉन्स, उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल बैरियर, who will fight with the antigen. ठीक है? There are at least, look at the word, 30 proteins. कितने प्रोटीन्स है? At least 30. कैसे है वो क्लास? Inactive.
कब तक इनएक्टिव रहेंगे? जब तक एंटीजन नहीं आए। जैसे ही एंटीजन आया, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब एक्टिवेट्स देम। ओके, मोर देन 30 प्रोटीन है हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में, जो घूम रहे हैं सब जगह। ब्लड किधर है? सब जगह है ना बॉडी में, ठीक है। जैसे ही एंटीजन आता है, दे बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट अ कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। कॉम्प्लीमेंट कैस्केड मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन, A to B, B to C, C to D, and they eliminate the pathogen. They kill the pathogen. ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। We have antimicrobial proteins, उनको AMP कहा जाता है, AMP, ठीक है। Antimicrobial proteins, you can see the word, there are at least 30 proteins which are in our blood, and they are in what form? Inactive. जैसे ही माइक्रोब आता है, दे बिकम एक्टिव, ठीक है। लेकिन क्लास, इसमें बहुत कॉम्प्लीमेंट कैस्केड क्या है? सीरीज ऑफ रिएक्ट। कभी भी आपके पास कैस्केड वर्ड आया मतलब अ सीरीज, ओके, इट्स नॉट दैट A kills B and over, no, there's a series of reaction and the pathogen is killed. अब देखिए एक स्पेशल वर्ड, नीट सीटी। नीट सीटी के बच्चे एक्टिवेटली इस पे ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देंगे। The interferon, these are special proteins only for viruses, only for viruses। मतलब क्लास, अगर मुझे आपके ब्लड में इंटरफेरॉन मिल रहा है तो मतलब आपके बॉडी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। ये पहले से प्रेजेंट नहीं है। आपके सेल जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है वो इंटरफेरॉन रिलीज करता है। आई रिपीट, अ सेल infected by virus releases interferon to tell the other, तो कम से कम दूसरे सेल की डेथ नहीं होगी। It stimulates the other cells to protect themselves. तो सपोज ब्लड चेक हुआ और उसमें क्या मिला? इंटरफेरॉन, मतलब कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। एंड दे हेल्प इन फाइटिंग विद द वायरस। साइटोकाइंस, साइटोकाइन मतलब, साइटो मतलब सेल, काइन इज टू ब्रेक, so they can kill, they are very special proteins, interferon। तो नीट और सीटी को मैंने क्यों एक्टिवेट बोला? बहुत बार इट इज अ क्वेश्चन। इंटरफेरॉन इज रिलीज्ड फॉर डैश, लास्ट लाइन, वायरल इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन फॉर व्हाट? वायरल इन्फेक्शन। और ये जो एएमपी दिख रहा है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, दिस इज मेनली फॉर, ये एंटी करता है, पर इंटरफेरॉन किसके अगेंस्ट काम करता है? वायरस। वेरी वेरी यूनिक, ठीक है, वेरी वेरी यूनिक, ठीक है क्लास। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, दे आर नॉट एंटीबॉडी क्लास, दे आर नॉट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक अलग ही चीज, एंटीबॉडी इज अ डिफरेंट, ठीक है। दे आर प्रोटीनेशियस क्लास। एक रूल आप याद रखेंगे, डिफेंस मतलब, डिफेंस के लिए सबसे पहला वर्ड है प्रोटीन। आपके बॉडी में जैसे ही प्रोटीन की कमी हुई, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम में आता। तो ये इंटरफेरॉन क्या है? प्रोटीन। एएमपी क्या है? एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है? अलग ग्रुप, सारे अलग अलग ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, दे आर आल्सो प्रोटीन, ठीक है। पूरा डिफेंस सिस्टम प्रोटीन। अब यहाँ पे देखिए एएमपी, एएमपी मैंने अभी अभी यूज किया था, यस, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन। देख स्टेप 1, एएमपी देखो आर्मी के ड्रेस में दिख रहा है, ग्रीन है ना, सोल्जर की ड्रेस भी नहीं उसको। वो क्या करता है? पहले पैथोजन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि तू इधर आ जा, ठीक है। फिर उसको अटैच हो गया, देखो उसको पकड़ लिया, और फिर उसमें क्या ड्रिल करता है? पोर मतलब खड्डा कर देता है, देखो इधर, समझे आप?
पैथोजन मर गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग इट डायग्रामेटिकली? देखो जरा क्लास, पहले क्या किया उसने? स्टेप 1 अट्रैक्ट्स द पैथोजन, स्टेप 2 उसको अटैच हो गया, स्टेप 3 इट फॉर्म्स अ पोर। ये वन मेथड है, ठीक है। लेकिन हमने बोला वायरस के लिए ऐसा नहीं होता। अभी अभी हमने बोला ना वायरस अलग चलेगा। तो लेट्स लुक एट द वायरस। व्हाट इज द वायरस डूइंग? लेट्स लुक एट इट। यहाँ पे देखो, 1 minute, I'll just clear this. Yeah. ये रहा वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो वायरस, वो जो ऑरेंज है वो सेल है, इन्फेक्ट हो गया। पोर से क्या होगा? पोर से जैसे बैक्टीरिया का बॉडी, उसके बॉडी में इकट्ठा हो गया तो ब्लड में जो भी केमिकल है उसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय, लाइसिस, लाइसिस हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? बैक्टीरिया इज यूनिसेल्युलर ना, उसके एक भी बॉडी में पोर हुआ तो वो मर जाएगा, उसके अंदर पूरे ब्लड के सीरम प्रोटीन जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वायरस इन्फेक्टेड सेल देखिए, ऑरेंज कलर का। 1 minute, आई एम गोइंग टू द मार्कर हियर। ये है वायरसेस, इसने इसको इन्फेक्ट कर दिया है। इस सेल ने क्या रिलीज किया? इंटरफेरॉन। क्या रिलीज किया? इंटरफेरॉन। लेकिन क्लास वो खुद को नहीं बचा पाएगा, उसको तो ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया। ये इंटरफेरॉन कहाँ गए? सेल के बाहर, और वो दूसरे सेल्स को बोलेंगे वायरस है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। दे विल फॉर्म अ लेयर अराउंड अदर सेल्स एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन, जल्दी दूसरे सेल इन्फेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। What is interferon made up of? पूछ रहे हो आप? Yes, it is made up. It is a protein. अभी हमने पढ़ा. Interferon is a protein. Okay? Are you getting it? But it is released only under viral infection. Antimicrobial protein पहले से आपके बॉडी में, पर वो इनएक्टिवेट, एक्टिव होगा तो वो कुछ एक्शन करे। बट वायरस सेल जब बॉडी में आता है और हमारे सेल के अंदर जाता है, देन आवर सेल्स रिलीज इंटरफेरॉन, और वो दूसरे सेल को, इट इज लाइक अ मैसेज बॉडी को कि वायरल इन्फेक्शन है, तो इंटरफेरॉन जा जाके दूसरे सेल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते। क्लास ये सब 100% बैरियर नहीं है, हाँ? मतलब हम कर रहे हैं, बॉडी फाइट करने की पूरी कोशिश कर रही है, उसके बाद भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन बॉडी का रिस्पॉन्ड वाज हाउ गुड, हाउ इट वाज फाइन फॉर द बॉडी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जरूरी नहीं कि इंटरफेरॉन आ गया तो अब आप बच गए, नहीं। बॉडी एक डिफेंस ट्राई कर रही है, हो सकता है इन्फेक्शन स्लो हो जाए, स्प्रेड ना हो, रुक जाए, हो सकता है ऐसा ना भी हो, डिपेंड्स ऑन कितने वायरस आए। आपको पता है कि एक निडल के टिप के ऊपर, निडल के टिप पे, टिप सिर्फ सुई के टिप पे कितने वायरस है? 3 करोड़ वायरस, 3 करोड़। तो अगर मैंने बोला कि एक ड्रॉप पानी जिसमें वायरस था, एक ड्रॉप आपके मुंह में चला गया है ना, तो कितने वायरस अंदर आ गए? आप सोचो, नंबर भी सोचो, फिर की इन्फेक्शन कितना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बॉडी कोशिश पूरी करेगी, लेकिन ये हमारा बर्थ फॉर्मूला, यानी हमारे सबके पास, सबके लिए। कोरोना वायरस इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ वायरस। हाँ, पर HIV से बड़ा है, HIV से बड़ा है। somebody is asking size, exact size I don't know, I've not read about it, but yes, it's a smaller group of virus, but it is larger than HIV वायरस से बड़ा, ओके, ठीक है। HIV तो बहुत ही छोटा, बहुत ही डेलिकेट, एकदम नाजुक वायरस बोलते हैं ना, एकदम नाजुक वाला HIV। कोरोना वैसा नहीं, ठीक है। यस, आई होप दिस डायग्राम इज नॉट इन द टेक्स्ट बुक, बट ये चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए ये डायग्राम आप, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? ओके, कैन आई लुक एट सेल्यूलर फैक्टर, द थर्ड लेवल ऑफ, अभी भी हम एपिथेलियल में ही है क्लास, ठीक है। सेल्यूलर फैक्टर, फैगोसाइटिक,
वेरी सिंपल. अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया, ये वर्ड यूज किया था मैंने, सॉलो कर लेना. सो आवर बॉडी हैज मेनी सेल्स विच आर फैगोसाइटिक. फैगोसाइटिक मतलब खा जाते हैं. दे इंजेस्ट, किसको इंजेस्ट कर? फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैन यू नेम सम फैगोसाइटिक सेल? देखो यहाँ पे मैक्रोफेजेस, कुछ WBCs, white blood cells. Can I use the word neutrophils? न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक है. मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक है. एक छोटा ग्रुप भी है माइक्रोफेजेस, वो भी है. एक वर्ड लिखा था NK सेल, नेचुरल किलर सेल, वो भी फैगोसाइटिक है. वो क्या करते हैं? ओके ये नॉन सेल्फ है, चलो इधर आओ, इसको एनगल्फ कर दो, खा जाओ. मैक्रोफेजेस पूरे बॉडी में घूमते रहते, पूरे बॉडी में. ओके एंड दे डू फैगोसाइटोसिस. न्यूट्रोफिल इज अ टाइप ऑफ WBC हमारे ब्लड में, ब्लड की तरह सब जगह, तो वो पूरे बॉडी में घूमते रहते हैं. व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ईटिंग इट. करेक्ट. ईटिंग, इंजेस्ट वर्ड देखिए, खा जाना. किसको खाना है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरसेस, जिसको बॉडी बोला है कि ये नॉन सेल्फ है, ये हमारे बॉडी का सेल्फ नहीं है. नेचुरल किलर सेल NKC, करेक्ट. दे ऑल्सो फाइट अगेंस्ट वायरसेस. और एक वर्ड आया देखो क्लास, ट्यूमर. अगर आपके बॉडी के सेल ट्यूमर बना रहे, नेचुरल किलर सेल्स will do phagocytosis. अगर एक्टिवेट हुआ तो they will get activated and try to kill, try to engulf, try to fight by ingesting them. ठीक है. phagocytic cells. phagocytic cell के दो एग्जाम्पल बोलिए, which I want you to by heart. बोलो दो एग्जाम्पल. I want you to learn the word macrophages. I want you to learn the word neutrophils. Neutrophils are WBC. कितना परसेंट है आपको पता है? 70% WBCs are न्यूट्रोफिल. क्योंकि सबसे पहले सबसे इजी तरीका क्या है? खा जाओ. सबसे पहले हार्मफुल चीज को कंज्यूम करो, उसको सॉलो करके खत्म करो. ठीक है. इज दैट क्लियर? यस. देखो क्लास, ये रहा आपका न्यूट्रोफिल. वो जो ब्लू कलर का सेल है ना, न्यूट्रोफिल. कौन अंदर आया? बैक्टीरिया. क्या किया? उसको एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर दिया. दिख रहा है? ये जो ब्लू कलर का बड़ा सेल है, दिस इज आवर न्यूट्रोफिल. क्या कर रहा है वो? फैगोसाइटोसिस. एनगल्फ. किसको एनगल्फ किया? बैक्टीरिया. और बाद में उसको डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय. सबसे इजी तरीका. ठीक है. फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस. NK सेल. ये थोड़ा सा हम ऊपर जाके बात कर रहे हैं. ओके. ये टेक्स्ट बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ. देखो क्लास, आपको दिख रहा है एक माइक्रोब और एक नेचुरल किलर सेल. ठीक है. These cells can recognize and kill someone else's body cell which have been infected. Okay. They can recognize tumor also. मतलब वो पहचान सकते हैं किसको? एंटीजन. पहचान सकते हैं सेल्स को जो हमारे बॉडी के नहीं है, पैथोजन है वो. ओके. दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कैंसर सेल, ट्यूमर सेल्स. ठीक है. so they can kill them. Disease, people who have less number of NK cell deficient, कमी है आप में. ठीक है. डेफिशिएंसी है. जनरली हैव इम्यून डिसऑर्डर्स, और उनको बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन होने का चांस होता है. अगर आपके पास नेचुरल किलर सेल कम है, कम है के लिए वर्ड क्या है? डेफिशिएंट. तो फिर क्या हो सकता है? यू आर मोर प्रोन. आप ज्यादा बीमार पड़ते हो. ठीक है. वेयर आर NK cells? They are in the blood and they are in the tissues. They are in the blood, और जब भी जरूरत पड़ेगी वो टिश्यूज में आ सकते. ठीक है. कैन यू सी दिस?
ये हमारा नेचुरल किलर सेल है, और ये दिख रहा है ये पैथोजन है जिसको वो खा रहा है, जिसको वो मार रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जो ब्लू कलर का सेल है क्लास, पर्पल ब्लू, दैट इज माय एनकेसी, और ये दिख रहा है ये आपका पैथोजन। ठीक है क्लास? फाइन, दिस इमेज इज नॉट देयर इन द बुक। ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ डिफेंस, फीवर, बुखार आना। तो क्या बुखार आने से हमको खुश होना चाहिए? हाँ, खुश होना चाहिए। किस बात की खुशी होनी चाहिए? कि बॉडी फाइट कर रही है। लेकिन फीवर आपको बता देते हैं कि देखो आपके बॉडी में कुछ तो आ गया है जिससे मैं फाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा के। बुखार 100 डिग्री, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट में बात हो रही है। हम बोलते हैं ना, अरे उसको तो 105 डिग्री बुखार है, हाई रिस्क पे हो, बराबर है। हाँ 105, फिर क्या करेगी बॉडी? एक सर्टेन पॉइंट के बाद बॉडी नहीं फाइट कर पाएगी, तो बुखार के लिमिटेशन। यस, लेकिन 105 तक बैक्टीरिया को भी बहुत डिफिकल्टी होगी, उसको भी बहुत प्रॉब्लम होगी, और हो सकता है उसकी ग्रोथ रुक जाए, उसकी डेथ हो जाए। किसकी? बैक्टीरिया। सो दे एक्सेलरेट, they make it fast to destroy the pathogen. Who is making it fast? Temperature. Temperature use किया हमने. It stimulates formation of interferon. जल्दी बनाओ इंटरफेरॉन, जल्दी फाइट करो फीवर बोल। ठीक है, इट हेल्प्स इन फाइटिंग विद वायरल इन्फेक्शन। आपने सुना होगा ना, वायरल फीवर है ना, ऐसे बोलते हैं आजकल, वायरल फीवर चल रहा है ना। What happens in viral fever? वायरस बॉडी में गया, बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या रिलीज होगा? इंटरफेरॉन, जो वायरस से फाइट करेंगे। तो अच्छी बात है ना। सो फीवर इज ऑल्सो अ डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये इंडिविजुअल को बुखार आ रखा है, आप देख सकते हो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसका। ठीक है, when local responses are not enough, बॉडी को लग रहा है कि एनके सेल, ये मैक्रोफेजेस इतना स्लो क्यों कर रहे हैं, थोड़ा कुछ फास्ट करना पड़ेगा, तो वाइड रिस्पॉन्स देती है बॉडी। क्या करती है? वाइड रिस्पॉन्स देती है, और क्या करती है? फीवर जनरेट करती है। ठीक है, इट ट्रिगर्स हाइपोथैलेमस, ब्रेन को बोलती है बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया जाए। ब्रेन क्या बोलता है? नहीं, 37 बराबर है, लेकिन नहीं, अभी बॉडी ने बोला है नो, प्लीज इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, वी आर फेसिंग एन अटैक बाय पैथोजन। तो ब्रेन भी सुन, ठीक है, और टेम्परेचर को हाई करता है, उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ विल स्टॉप, फैगोसाइटोसिस जल्दी होगा, स्टिम्युलेट होगा, बॉडी टिश्यू जो डैमेज है दे विल रिपेयर। लिवर स्प्लीन, लिवर स्प्लीन दिख रहा है, उसमें बहुत सारा आयरन स्टोर हो जाएगा और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा, और उससे इमीडिएटली क्या होगा? फाइट होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बैक्टीरिया को आयरन चाहिए ग्रो होने के। क्या चाहिए? आयरन। तो वो आयरन हमने किसको भेज दिया? लिवर और स्प्लीन को बोल दिया अंदर करो, आयरन छुपा दो, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो कितनी सारी चीजें हुई जस्ट बिकॉज बुखार आ गया। ठीक है, जस्ट बिकॉज somebody got fever, all this has what has happened? वाइड रिस्पॉन्स में गए हो। क्या रिलीज हुआ? इंटरल्यूकिन, जैसे इंटरफेरॉन है ना, दूसरा केमिकल इंटरल्यूकिन किसने रिलीज किया? माइक्रोफेज में। थैलेमस इमीडिएटली ओके एक्टिवेट हुआ, चलो टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ गया, बैक्टीरियल ग्रोथ रुक गया, फैगोसाइटोसिस बढ़ गया, रिपेयर फास्ट हो रहा है, लिवर और स्प्लीन आयरन को, Fe को छुपा रहे ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाए। कैन यू सी सो मेनी रिस्पॉन्स जस्ट बिकॉज ऑफ फीवर? समझ रहे हो? इंटरफेरॉन बढ़ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिकवरी विल बी फास्टर। समझ में आया क्लास? लास्ट वाला
एक्यूट फेज प्रोटीन एपीपी रिस्पॉन्स, ठीक है, एक्यूट फेज प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज सडन इंक्रीज, एक था एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन ना, वो एक अलग चीज। ये जो एपीपीज है, कभी भी आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो वहां पे एपीपी इंक्रीज अगर दिख रहा है आपको ब्लड टेस्ट में, तो मतलब बॉडी ने अचानक मेजर इन्फेक्शन के लिए फाइट करने की कोशिश की, मेजर इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन और इंजरी की वजह से देयर इज सडन इंक्रीज, देयर इज अ sudden increase in plasma protein, a typical group of protein which are called acute phase protein. Look at the word class, acute, infection हो रहा है, जल्दी जल्दी ये प्रोटीन बना। एपीपी क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, टिश्यू की इंजरी को रोकते हैं। जो भी माइक्रोब अंदर आ गया है वो हमारे बॉडी से फाइट कर रहा है, बॉडी को डैमेज कर रहा है, तो वो डैमेज को रोकते हैं। दे प्रमोट रिपेयर, रिपेयरिंग चालू करते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। बॉडी में रेडनेस आया है, स्वेलिंग आया है, कोई पर्टिकुलर सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, दे प्रमोट रिपेयर। लेट्स लुक एट द नेम ऑफ दिस प्रोटीन, CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन, सेल्यूलर रिएक्टिव प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन देखो, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, serum amyloid protein. These are some of the examples of acute phase protein. ठीक है, जैसे इन्फेक्शन होता है acute phase protein लेवल बढ़ सकता है। वो कहाँ पे मिलेगा क्लास, प्लाज्मा में। प्लाज्मा मीन्स ब्लड में। वो क्या करने वाला है, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, इंजरी को रुकाएगा, प्रिवेंट इंजरी, रिपेयर को बढ़ाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, रेडनेस, स्वेलिंग, उसको इमीडिएटली टैकल कर। और वो एक टाइप के नहीं, बहुत सारे। कैन यू से ये बहुत सारे क्यों, व्हाई सो मेनी टाइप्स, व्हाट इज दिस, मैनोज, अल्फा 1, सीरम अमीलॉइड क्लास। माइक्रोब भी तो बहुत सारे ना, कोई बैक्टीरिया आ सकता है, कोई वायरस आ सकता है, अमीबा आ सकता है, फंगस आ सकता है, डस्ट पार्टिकल आ सकता है, वी डोंट नो। इतनी सारी चीजों से रिएक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हेल्प कर सकते हैं, तो वी डोंट नो। हो सकता है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में सीरम एमिलॉइड काम कर जाए, हो सकता है वायरस के लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन काम कर जाए। सो वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी कितना इंक्रीज हो रहा है, कैन यू सी, 52,000 टाइम इंक्रीज, 52,000 टाइम। जब क्या होता है, जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिस्पॉन्स और कैंसर, जो क्या क्लास, नियोप्लास्टिक मतलब ट्यूमर, कितना बढ़ गया प्रोटीन लेवल, 1000 टाइम्स, ठीक है। सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP, वो उसका मेजर प्रोटीन जो काम करता है, ठीक है। वेयर इज इट प्रोड्यूस, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही जाता है। उनको टिपिकली सेल्यूलर रिएक्टिव प्रोटीन्स बोलते हैं, जो सेल डिफेंस में काम करते, एनर्जी बढ़ा के। अब एनर्जी कैसे बढ़ेगी, कार्बोहाइड्रेट से, तो वो किससे बाइंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। एनर्जी लेवल बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से लिवर विल मेक मोर प्रोटीन। जब मोर प्रोटीन बनेगा, कितना टाइम्स मोर, देखो इधर क्लास 52,000 टाइम्स मोर कर सकते हैं, एंड दे कैन गिव यू अ बेटर रिस्पॉन्स, ठीक है, दे कैन गिव यू अ बेटर रिस्पॉन्स। आर वी क्लियर विद दिस, यस क्लास। तो ये आपका कौन सा कंपोनेंट हो गया, यस क्लास, इनेट इम्यूनिटी का हमने बैरियर्स कर लिया, क्या कर लिया, बैरियर, ठीक है। और मैंने आपको एकदम बिगिनिंग में कहा था कि क्लास बैरियर, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
पहले क्वेश्चन आता था गिव बैरियर इनेट इम्यूनिटी 2 मार्क्स। तो अभी हमने जितना सारा पढ़ा है क्या वो 2 मार्क्स में जाएगा? नहीं। तो अब क्वेश्चन क्या हो सकता है? एपिथेलियल बैरियर, हाउ इज फीवर एज अ बैरियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो 2 में जाए। आर यू गेटिंग इट? दे हैव स्ट्रेच्ड इट, बहुत ज्यादा लंबा कर दिया। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? सो टुडे यू विल कॉन्सेंट्रेट द बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ठीक है क्लास, वेरी क्लियर। डिफरेंट हमने कितने बैरियर्स किए? 5 बैरियर्स, उस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, बैरियर, यस। मैंने जितना हो सके टेक्सुअल वर्ड आपके स्लाइड में डाला था ताकि टेक्स्ट बुक पढ़ते वक्त आपको तकलीफ ना हो। फिर भी इफ देयर इज एनीथिंग प्लीज सेंड इट बैक। ओके, ठीक है, वी स्टॉप हियर फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर Thank you, ma'am.